start with the takeaways, like what you can expect by the end of this session. There'll be two key takeaways. I'll not be giving you 10 things to work on, only two key takeaways which you can expect from this masterclass or from this bank. I usually call it masterclass. It's like a workshop. It's not a gyan. So you will get the real tools to work with, which you can just go and implement. It's like a plug and play tools, right? So the first one is that I'll be sharing the framework, how to reduce your cost in your company by more than 30%. And that will be through creating a strong foundation. So that's the takeaway number one. And don't worry, when I talk about the foundation, it'll be very easy to lay down that foundation. It'll be very basic. So don't worry on that part, on the execution part, that also I'll talk about. And then in the second part, I'll share with you the ultimate strategy of cost reduction, and that will be supported by the case studies so that you can see that this works, right? And when you see something which works, then you get inspired to implement that. That's how we as a human beings are wired, right? Just to give you a little bit of my background, what just mentioned, that I run a company called Blue Consulting, and we are a team of 100 people, 110 now, and around 20 chartered accountants, and rest are accountants. So what we do, we support mid to large size of companies, big companies, to outsource their finance and accounts to us, and we help their CFOs to focus on the strategic issues in the company. So usually those are occupied in the routine stuff. So that is our, I would say, advantage when they get us on board. When it comes to cost reduction, in the past 2 years, I got the privilege to coach more than 1,000 CEOs and the CFOs on the subject of cost reduction, and they got huge value when they implemented these ideas in their company. And in addition to my, leading this company and doing this cost reduction stuff, I am also author of 2 bestseller books. One is a very different subject. In case you are interested to get more time in your life and want to manufacture more time in your life, then you can go through this. This is an Amazon #1 now, How to Manufacture Time. And the second book is on the same subject, cost reduction. I think, yeah, just a minute. Yeah, so there was some issue with the bandwidth. So the second one is the 17 proven instant cost reduction ideas. And these are some of our clients with whom we are working right now or with whom we have worked in the past. These are all mid to large size of companies. So now let me ask you one question, one simple question, right? And let me also put my video on mute so that you can focus on the presentation, because I want your full attention on the slides. Let me just minimize this video. This is a little bit distracting. Yeah. So I just want to ask you one question. Can I safely assume that you have taken this 60 or 90 minutes of your time from your life to learn the cost reduction strategies through which you can reduce the cost, right? So you have come with that mindset. And to get the full value from this session, I would request your full participation. This is not a one way. ये एक तरफा नहीं होगा, हम दोनों तरफ से participate करेंगे, then only you will get the value. So can I count on you guys? If yes, please type yes in the chat box, because your participation is must. अगर आप केवल बैठे रहेंगे सुनेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा. जब आप साथ में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप टाइप करते हैं चैट बॉक्स पे भी, आई नो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव मीडियम, वर्चुअल मीडियम, आप जब सामने मिलते हैं सामने की एनर्जी अलग होती है, लेकिन तब भी आप जब टाइप करते हैं ना, तो इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो वो डायरेक्ट रजिस्टर होता है. So thank you so much. So I am really loving your participation. Absolutely. So I am 200% committed to give you the transformational knowledge. And in my experience so far, when I worked with or coached so many CFOs and the CEOs, the two things can come in your way of learning. और वो दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं. Just be aware of these two things. The first one is that I already know this. The first one is I already know this. So a lot of people assume in advance, for example, if I'm sharing something, so a lot of people will assume in advance that I already know this. Now I ask you, tell me one thing, whether you agree with me or not, when you look at the same thing with a new lens, you get an insight, yes or no?
Come on, guys, tell me, when you look at something with a new lens, you get a different insight or not? So what I'm sharing with you here is not something from Google or not something from, theoretical. It's the based on the 20 years of my experience of working with hundreds of the companies to find out, what work for you so that you get the maximum value, right? So I am, assuming that you will be careful that the moment your little voice in your brain says that I already know this, you need to tell your little voice to shut for some time and concentrate on the slide. Super. The second thing which can come on your way is that this doesn't apply in my company. तो बहुत से लोग जब मेरी बात सुनते हैं, जब मैं उनसे शेयर करता हूं, तो उनको लगता है चंदन जो आप बता रहे हो, इट्स ग्रेट, लाइफ इज ग्रेट, बट somehow this doesn't apply in my company because we are in a manufacturing business, we are into service, we are into trading, we are in job work, right? So I'm sure a lot of member of the bank here are from the different businesses. But guys, let me tell you one thing, very simple, basic thing. If you deal with human beings, the strategies which I'm going to share with you applies, period. So the right way to find out is to ask this question. You need to turn around this question and you need to say, how can I apply this in my company? Instead of saying that this doesn't apply. So guys, if you agree that you will ask this question, that how can I apply, please type in the chat box, agree. If you agree with me that these two things will not come in your way, please type agree 2 times in the chat box so that I get to know your commitment, that you are in sync with me. And now let's go forward. Let's move forward. So let me just share with you what is the current reality of the economy. Though you all are well-read people, you would be aware, but still at the cost of repeating it again in the context of today's talk, let me just share with you as per what I perceive. And all of you are aware that oil is at a 14 years high. It's very almost at $125 per barrel. Input cost in every one of our businesses, हम सबके बिजनेस में इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो बिजली हो, anything you touch upon, and everywhere the input costs are rising, right, which are impacting to some extent our cost as well. And I'm sure, especially in the corona time, everyone was after the cost to reduce the cost so that you can go through this difficult time. And I'm sure you must have squeezed cost to the extent possible. Yes or no, guys? I'm sure you already have done your work on the cost front in your business almost to the extent that you don't think it is possible anymore, right? तो अब इसका जो ऐसा टाइम ये चल रहा है जब सारी चीजें ऐसा इकोनॉमी इस तरह की सिचुएशन में है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, जैसे जस्ट ने भी जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था, आई गोट थ्रू दैट 1 minute वीडियो विद व्हाट जस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन दिस टुडेज सब्जेक्ट, एंड ही इज वेरी राइट दैट देयर आर 2 थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल और व्हिच आर द 2 की ड्राइवर ऑफ द बिजनेस. या तो आप अपनी रेवेन्यू बढ़ा लो या कॉस्ट को कम कर लो, राइट? तो अल्टीमेटली दोनों का इंपैक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन पे होता है, एंड एवरी बिजनेस ओनर इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, राइट? एंड दैट फॉर द कैश प्रॉफिट, केवल बुक प्रॉफिट नहीं, आपको आपके बैंक में पैसा आना चाहिए, राइट? अब जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट है, दोनों के अपने अपने प्लस एंड माइनस है. नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हिच वन इज मोर कंट्रोलेबल. आपके हाथ में रेवेन्यू को बढ़ाना आसान है कि कॉस्ट को कम करना आसान है? व्हिच वन इज मोर इन योर कंट्रोल? आपके हाथ में क्या है? मतलब अगर रेवेन्यू, हाँ एग्जैक्टली, सो कॉस्ट इज समथिंग व्हिच यू कंट्रोल. आपके हाथ से चेक कट के जाता है या एनईएफटी जाती है, बिल्स आते हैं आपके पास, तो कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो आप डे इन डे आउट मॉनिटर करते हो, और जब भी कभी कोई एडिशनल पैसा देना होता है आपको दर्द होता है, आपको पता है यार ये मेरी जेब से जा रहा है, राइट? तो आपको पता होता है. रेवेन्यू क्या है कि वो बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करती है, बहुत सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं जहां पे आपका कंट्रोल कई बार होता है और कई बार नहीं होता है. तो जो आपका जो ये कॉस्ट जो आपने बताया, which you rightly said that cost is more controllable when economy is not doing well. I won't say that economy is not doing that well, but still we haven't come out of that slowdown, या अभी भी uncertainty हमारे इकोनॉमी में बनी हुई है.
फॉर वन थिंग और अनदर, पहले कोविड था, अब ये जो वॉर आ गई और कल को कोई और चीज आ जाएगी। तो हमें आज जो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे ना, आई वांट यू टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप विद द कॉस्ट। अगर आपका ये जो रिलेशनशिप विद कॉस्ट खत्म हो जाएगा, तब आप इसको कॉस्ट को तब कंट्रोल नहीं करोगे जब आपकी कंपनी में इश्यूज है या इकोनॉमी के अंदर इश्यूज है। इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, राइट? जब आप बिजनेस, और रादर देन वे ऑफ लाइफ, इट शुड बी द वे ऑफ बिजनेस। तो आपके कल्चर के अंदर ग्रास रूट लेवल पे ये चीज आ जाएगी अगर आप कॉस्ट को आज जो मैं बता रहा हूं उस तरह से आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे, उस तरह से आप देखेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। अब जब कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है ना किसी भी कंपनी में, तो लोग पीपल शाई अवे फ्रॉम द वर्ड यूजिंग कॉस्ट रिडक्शन। तो लोग क्या करते हैं ना, उसको डेकोरेट करने के लिए पीपल से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बट लेट मी टेल यू गाइस, बी रियल विद द थिंग, डोंट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट थिंग्स। लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो चीजें जैसी है ना उसको वैसी देखिए। हमारी अंदर से इच्छा, मुझे बताओ, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने की होती है या कॉस्ट को रिड्यूस करने की होती है? गाइस कम ऑन, लेट्स बी रियल, वी ऑल आर बिजनेस ओनर्स। हमारी जो कॉस्ट को, जो हम वर्ड यूज करते हैं, हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है कि कॉस्ट को ट्रांसफॉर्म करना होता है या ऑप्टिमाइज करना होता है? व्हाट डू वी वांट? अगर हमसे हार्ट ऑफ हार्ट कोई पूछे, जब चार दोस्त मिलकर बात करते हैं, तो हम रिड्यूस करना चाहते हैं ना कॉस्ट को, कि भाई हमारी कॉस्ट एक लेवल पे रिड्यूस हो जाए। सो अगर हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो कॉस्ट की जो रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। और इनफैक्ट लाइफ में हर चीज के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव और दूसरा होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब भी समझते हैं आप, आई एम श्योर, और रिएक्टिव का मतलब भी समझते हैं। तो एक होता है रिएक्टिव अप्रोच और दूसरी होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव में क्या होता है कि जब कोई चीज हमारे सामने आ जाती है, फॉर एग्जांपल जब कोरोना हमारे सामने आ गया, सेल्स हमारी बिल्कुल नीचे चली गई, देन वी रियलाइज कि भाई अब कोई चॉइस नहीं है, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। दैट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। और दूसरा है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि हमें कोरोना हो ना हो, इकोनॉमी नीचे आ रही हो नहीं आ रही हो, वॉर हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन हमें कॉस्ट को मॉनिटर करना है और देखना है कि कौन सा फैट कॉस्ट के अराउंड जमा हो रहा है। जैसे हम अपनी हेल्थ को जैसे हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव करते हैं, नहीं, रिएक्टिव तब करते हैं जब अगर कोई डायग्नोज हो जाती है कोई डिजीज, तब हम हेल्थ का टेक केयर करना शुरू करते हैं। दैट्स ए रिएक्टिव अप्रोच। और प्रोएक्टिव वो आता है जब हमारा हेल्थ वैसे ही ठीक है, स्टिल वी गो फॉर ए वॉक, स्टिल वी गो फॉर ए जिमिंग। दैट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। अब रिएक्टिव अप्रोच का इशू क्या होता है कि रिएक्टिव अप्रोच जैसे ही आपका वो इशू खत्म होता है, तब आप उसके लिए एफर्ट लेना बंद कर देते हैं। और प्रोएक्टिव का क्या होता है कि वो आपकी हैबिट के अंदर आ जाता है। दैट इज द मेन बेनिफिट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रिएक्टिव जो अप्रोच होती है, एक तो वो सस्टेनेबल नहीं होती। जो रिएक्टिव अप्रोच होती है वो कभी सस्टेनेबल नहीं होती। और जो कॉस्ट आप रिड्यूस करते हो, वो साल भर के बाद जब इकोनॉमी अच्छा करने लगती है और आपके पास पैसे आ जाते हैं बैंक में, तब आप फिर छोड़ देते हो कॉस्ट को कंट्रोल करना या कॉस्ट को मॉनिटर करना। दूसरा, जब भी आप रिएक्टिव वे से कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, इट विल लीव अ बैड टेस्ट इन माउथ। या तो एम्प्लॉय नाराज होंगे, या कस्टमर नाराज होंगे, या वेंडर नाराज होंगे। तो इसका बेसिकली आपके बिजनेस पे ओवरऑल एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। वेयर एज जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो एक तो सस्टेनेबल है। आप उसको अगर कॉस्ट को इस तरह से देखेंगे, जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, द फाउंडेशन ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन एंड द अल्टीमेट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी, you will find it absolutely sustainable and you will look forward to apply it in your company with all the vigor. Second, ये एक स्पाइरलिंग इफेक्ट है, एक वर्चुअस साइकिल को किक करता है जब आप प्रोएक्टिवली कॉस्ट के ऊपर बात करते हो एंड पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। आपके मेनली तीन ही स्टेक होल्डर हैं, चौथे हैं गवर्नमेंट में, उसकी बात नहीं कर रहा, बट आपके केवल तीन ही स्टेक होल्डर हैं आपकी कंपनी में। एक आपके क्लाइंट हैं, एक आपके वेंडर हैं, और एक आपके एम्प्लॉई हैं। ऑब्वियसली आप तो हैं ही, खैर उसमें कोई बात नहीं है, बट इसका जो तीनों के ऊपर इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। क्लाइंट गेट द बेस्ट सर्विस, जो आपके वेंडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन सर्व कर पाते हैं, और एम्प्लॉय होते हैं वो आपके पास रुकते हैं और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो टेक अवे नंबर 1 है, उसको अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जो मैंने बात करी आपसे फाउंडेशन की, दैट आई विल give you a framework through which you can reduce your cost by 30% easily. और जब मैं आपको ये शायद बड़ा लग रहा होगा 30% का फिगर, कुछ जगह पे ये 20% होगा, कहीं 50% भी हुआ है कुछ, और ये एक्सपेंस वाइज होएगा। आप अगर इसको ये देखो कि अच्छा आज मेरी कंपनी का 20 करोड़ की कॉस्ट है तो वो 30% रिड्यूस है, इट वोंट हैपन ओवरनाइट, राइट? बट देयर वुड बी सर्टेन कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस where when you apply this framework,
there is a 110% possibility that it can be reduced if you apply it correctly the way I tell you. So guys, are you excited for getting the takeaway number 1? So let's create some excitement. If you're excited, please type capital Y in the chat box, capital Y in the chat box. और ये ना थोड़ी सी एनर्जी बिल्ड करके चलेंगे, बिकॉज एनर्जी से ही आपकी जो लर्निंग है और मेरा जो आपको जो मुझे आपको देना है वो तभी वहीं से आएगा, ठीक है? अदरवाइज बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, इट्स अ वन वे मोनोलॉग टाइप सा हो जाएगा, मैं आपसे बस बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है? ग्रेट। और वर्चुअल में ठीक है, हम लोग ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकते, स्पीकर ऑन नहीं कर सकते, अदरवाइज वो क्योस हो जाता है। सो आई वुड यू हैव टू लिव विद दिस चैट बॉक्स व्हिच इज आई थिंक नाउ वी ऑल आर प्रोफिशिएंट यूजिंग इट। थैंक यू सो मच। तो जो ये कोस्ट रिडक्शन फाउंडेशन की हम बात करते हैं, इसके बारे में पहले हम एक बात करते हैं। और मुझे पहले ये बताइए कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन, सो व्हाट्स द रोल ऑफ फाउंडेशन इन लाइफ? क्या आपको लगता है कि फाउंडेशन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है? एनीबडी? क्यों इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन? थोड़ा सा ना आपको मैं काम कराऊंगा साथ साथ, क्योंकि ये वर्कशॉप है, तो आपको ऐसा नहीं कि फ्री में ज्ञान मिल जाएगा, खाली वाई लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना? थोड़ा सा मुझे बताओ, या तो बेटर है वैसे चैट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज माइक ऑन होने के बाद में फिर माइक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के बारे में चला जाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑलवेज टू स्टैंड ऑन। वेरी गुड यदविंदर, वेरी गुड, वेल सेड यदविंदर। If base is strong, then building will be strong. Absolutely true. Absolutely true, Neha. What else? Why foundation? It's a base of everything. Yes. हमारे लाइफ में ना जो बेसिक्स है ना, जो बेसिक्स, जो हमें कई बार हमारे लोग, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो लाइफ में जो विजडम वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आप देखिएगा जब भी बात करेंगे ना, वो केवल बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। और हमें लगेगा कि अरे यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं, और हमारी हमेशा ना बेसिक्स मिसिंग होते हैं लाइफ में। तो माय स्मॉल एंडेवियर रिगार्डिंग कॉस्ट रिडक्शन टुडे इज दैट टू make you introduce to the basics of the cost reduction, जो आप कहोगे कि ये बहुत easy है इसको apply करना। Exactly, Sudeep, foundation is the, any field is the base layer actually. Vision is on foundation only, rightly said Kumar. So इसको ये देखते हैं कि मैं आपको एक example देता हूँ, मैं आपको एक example देता हूँ। ये आप identify कर रहे हैं building, what this building is? आप काफी लोग इस country में गए भी होंगे, तो आपने देखा भी होगा ये, I am sure you would be familiar with this building. Exactly, Yadvinder. So guys, give a huge round of applause to Yadvinder for recognizing it first. This is Burj Khalifa. It was one of the tallest tower at one point of time. मुझे याद नहीं, पता नहीं शायद इससे भी tallest बन गई है tower, but at one point of time when it was constructed, it was the tallest tower. अब कभी आपने इसका बेस देखा है? आपने सोचा होगा कि इसकी फाउंडेशन कैसी रही होगी, इसकी फाउंडेशन कैसी रही होगी? जब इतनी बड़ी टावर, इतनी बड़ी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की टॉलेस्ट टावर बना दी इन्होंने, तो ये जो इसका जो फाउंडेशन है ना, अगर आप देखेंगे जब बन रही थी ये फाउंडेशन, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑन विच, ऑन द 3-dimensional स्ट्रक्चर दिस बुर्ज खलीफा वाज लेड अपॉन। अब ये तो आपको केवल ऊपर से दिख रहा है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन जो होती है वो बेसिकली इट गोज डीपर इन द ग्राउंड, राइट? सो दैट्स हाउ द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर। सिमिलरली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है वो हमारे कल्चर में डीप रूटेड होती है, राइट? हमारी अपनी जो फाउंडेशन होती है, जब हमसे लोग बात करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसमें डीप रूटेड होती है। जो ट्रीज होते हैं उनकी फाउंडेशन बिल्कुल जड़ों में होती है, राइट? तो इसी तरह से ये जो फाउंडेशन है, इसका अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, जो नीचे आप पिलर देख रहे हैं ना इस बुर्ज खलीफा की, एक ये वैसे इमेज है, इसमें करीब 1,10,000 टन का कंक्रीट है इसकी फाउंडेशन में। उसके बेस पे ये इतनी बड़ी फाउंडेशन बन पाई है। इसके नीचे इसको पावर करने के लिए 192 पिलर्स, ऑलमोस्ट 200 पिलर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी जो डेप्थ है, यू विल बी सरप्राइज टू नो 164 फीट इट गोज डीप इन द ग्राउंड। और 164 फीट का मतलब है करीब 15 माले की बिल्डिंग। मतलब कि जो बुर्ज खलीफा आप देख रहे हैं ऊपर, जो आपके सामने दिख रहा है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए नीचे 16 माले की बिल्डिंग या 15 माले की बिल्डिंग नीचे बनी हुई है विद द कंक्रीट एंड द अदर स्टफ। सो दैट्स हाउ द रोल ऑफ द फाउंडेशन इज। मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए क्रिएट किया कि आपके माइंड में ना ये ब्रेन टैटू बन जाए कि आपको अपनी कंपनी में बुर्ज खलीफा जैसा फाउंडेशन क्रिएट करना है, तभी आप कोई भी चीज उसके ऊपर कुछ भी आप क्रिएट करोगे ना, उसके ऊपर बनाओगे, तो दैट वुड बी सस्टेनेबल, राइट? फाउंडेशन इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है कि जो आप उसके ऊपर बनाओ वो सस्टेन कर सके। डू यू अग्री विद मी? आर यू अलाइंड विद मी सो फार? आर यू इन सिंक?
Okay, great, great, super, super. Now let's come to the point, the real point which I want to make through this context which I just created by investing 5 or 7 minutes with you. So now let's talk about the foundation. तो मैं आज आपसे जो ये फाउंडेशन है, जैसे बुर्ज खलीफा का 3 डायमेंशन फाउंडेशन होती है, और हमारे आई थिंक हिंदू माइथोलॉजी में या इनफैक्ट अदर रिलीजन माइथोलॉजी में भी 3 का बड़ा महत्व है, राइट? द 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आप उसको उठा के देखो तो 3 चीजें बड़ी होती है. तो कॉस्ट रिडक्शन फाउंडेशन भी ना ये 3 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, और ये तीनों एलिमेंट इतने ईजी हैं अप्लाई करने में, आप कहोगे चंदन मजा आ गया. ये मतलब आप जब आप ये खत्म होगी वर्कशॉप, आप कहोगे यू एक्चुअली कैन इजीली इंप्लीमेंट. आपका बिजनेस चाहे 1 करोड़ का है, चाहे 10 करोड़ का है, चाहे 100 करोड़ का है, चाहे 1000 करोड़ का है, ये ऐसे बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जो सारे बिजनेसेस में सेम टाइम पे सेम तरीके से अप्लाई होते हैं. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. तो आप जब मैं जो आपसे चीजें शेयर करूंगा, कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, कोई बड़ी कंपनी का अगर मैंने एग्जांपल शेयर किया, तो माइंड में ना ये ब्लॉक मत लेके आइएगा कि यार ना ये तो बड़ी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी तो कर सकती है, हम तो छोटी कंपनी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा है. बड़ी कंपनी को रिड्यूस करने में बहुत ताकत लगती है, किसी भी चेंज को इंप्लीमेंट कराने में. बट कंसीडरिंग इफ योर साइज इज स्मॉल, यू आर मोर निम्बल, यू आर मोर agile, so it's very easy at your company to implement the cost because you are the driver. Let's start with the first element of the. पहले मैं आपको तीनों एलिमेंट बताता हूं और फिर मैं आपको एक एक करके उनका पूरा नो हाउ देता हूं कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी. The first element is EROS. It's an acronym. I'll decode it in a minute. ये आपको पूरा पता चल जाएगा. ये acronym इसलिए बनाया कि आपको ब्रेन टैटू हो जाए, आपको याद रखने में इजी हो. सेकेंड इज परेटोज लॉ. काफी लोग आप अवेयर होंगे, बट मैंने आपको कहा था ना कि 2 चीजें आपके लर्निंग के बीच में आ सकती है कि आई ऑलरेडी नो दिस. अगर आप परेटो के बारे में जानते हैं तो प्लीज पार्क दैट नॉलेज फॉर द टाइम बिंग. प्लीज पार्क दैट नॉलेज. जब आप उठें इस वर्कशॉप के बाद उसको वापस उठा लेना, थोड़ी देर के लिए मेरे रिक्वेस्ट पे पार्क कर दो. और थर्ड जो एलिमेंट है इसका कॉस्ट रिडक्शन फाउंडेशन का, वो है 3 लेटर मैजिकल कोड. वो कोड मैं आपसे शेयर करूंगा. आई विल रिवील दैट इन द मोमेंट्स, इन फ्यू मोमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन फाउंडेशन. So guys, tell me, are you excited to receive this cost reduction foundation for your company? If you're excited, please type small e in the chat box. I'll keep changing the elements which you need to write so that I know that you are awake, you are aligned. And now I would request you to come closer to your screen and pay full attention. अगर आप कुछ भी आपके आसपास, अगर आप अपनी कोई ये मोबाइल फोन देख रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, तो now I want your full attention, right? So that you get it full, absolutely right way in the first attempt. तो जो ये EROS है, ये क्या है? ये बहुत सिंपल है. EROS is made up of 5 letters, right? EAROS. EROS को आप अपने माइंड में एक ब्रेन टैटू कर लीजिए. एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट EROS इन द चैट बॉक्स, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस, आपके माइंड की वायरिंग होती है. तो प्लीज टाइप EROS कैपिटल इन द चैट बॉक्स. EROS everyone. I want each one of you to write EROS. All 32 people or all 31 people to write, because only 7-8 people have written so far. I won't move forward till everyone write EROS in the chat box. Great, 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 super. Thank you so much guys. तो मैं पहले अब EROS को डिकोड करता हूँ, what EROS means. फिर मैं आपको एक एक करके इसके एलिमेंट को बताऊंगा. आपको करना क्या है कि आपकी कंपनी में जितने भी एक्सपेंस आइटम होते हैं, राइट? एक्सपेंस आइटम, मुझे थोड़े एग्जांपल दीजिए आप एक्सपेंसेस के इन द चैट बॉक्स. अलग अलग जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट, जस्ट कीप राइटिंग, कीप राइटिंग. किस तरह के एक्सपेंस होते हैं? सैलरी होती है, मैन पावर, और बताइए, रेंटल, AWS, ठीक है, ट्रेवल होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है. थोड़ा रियल बताइए, और चीजें बताइए. एड्स होती है, मार्केटिंग का बजट होता है, लॉजिस्टिक होता है, ठीक है, गूगल एड्स होते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल जो उसके ऊपर चलाइए. ग्रैंडुलर लेवल पे इंश्योरेंस करानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? ग्रैंडुलर लेवल पे चले जाइए. जो जो आप रोजमर्रा में चेक साइन करते हैं, टेलीकॉम है, वेंडर पेमेंट्स है, कंज्यूमेबल्स है, एक्चुअली, ठीक है. तो आपको करना ये है, एब्सोल्युटली, आई गॉट इट, नाउ यू कैन स्टॉप. अब आपको करना ये है कि जितने भी जो एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं, आपका सिंपल तरीका क्या है कि आप अपनी कंपनी में अपने अकाउंटेंट से एक ट्रायल बैलेंस ले लो
उस पे सारे जो आपके एक्सपेंस साइड के खर्चे हैं वो दिख जाते हैं, ठीक है। कहीं 10 होते हैं, कि 15 होते हैं, कि 25 होते हैं, कि 50 होते हैं, लेकिन 150 भी होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज और किस तरह से आपने अकाउंटिंग की हुई है। सिंपल है इतना, आपको एक्सपेंसेस के मिल जाएंगे नाम, उसके सामने आपको अमाउंट भी मिल जाएगी, सारा आइडिया लग जाएगा। अब आपको करना ये है कि हर एक्सपेंस को लेके एक्सेल शीट पे या मैन्युअली, जैसा आपका अपना काम करने का तरीका है, प्रिंट आउट लेके आपको हर एक्सपेंस को इरोस के लेंस से गुजारना है। यू नीड टू पास इट थ्रू द इरोस लेंस। इरोस को एक आप लेंस की तरह देखिए कि उसको आप पहले ई से गुजारेंगे, फिर ए से गुजारेंगे, फिर आर से, फिर ओ से, फिर एस से। अब मैं आपको डिकोड करता हूं व्हाट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, राइट। तो इरोस से जब आप करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका जो एक्सपेंस है वो ठीक है या नहीं, उसमें कोई रिडक्शन की, ऑप्टिमाइजेशन की, जो भी वर्ड आप कहें, उसकी गुंजाइश है कि नहीं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी टू रिड्यूस इट फर्दर। आपको जवाब मिल जाएगा, आइडियाज मिल जाएंगे इमीडिएटली, राइट। सो द फर्स्ट लेटर इज ई, दैट स्टैंड्स फॉर एलिमिनेट। देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सेकंड है ऑटोमेट, थर्ड है रिड्यूस, देन आउटसोर्स, एंड फोर्थ इज सिंप्लीफाई। तो आपको ये देखना है कि क्या ये ट्रेवल का एक्सपेंस क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। मैं लास्ट का देख रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूं, अगर एलिमिनेट नहीं कर सकता तो, जिससे कि मेरा एक्सपेंस रिड्यूस हो जाए। थर्ड, अगर मैं चलो एलिमिनेट भी नहीं कर सकता, ऑटोमेट भी नहीं कर सकता, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। चलो मैं तीनों चीजें नहीं कर सकता, क्या मैं इसको आउटसोर्स करके रिड्यूस कर सकता हूं। अगर ये चारों चीजें भी पॉसिबल नहीं है तो आई नीड टू लुक एट कि क्या ये प्रोसेस को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि जितना आप सिंप्लीफाई करते हैं उतना ही आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है। सिंप्लीफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस गोज हैंड इन हैंड। डू यू अग्री विद मी दैट कि जितना आप किसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हो वो प्रोसेस उतना एफिशिएंट बन जाती है, और एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो उतनी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है, आपका जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। ये बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये हम रोजमर्रा में देखते हैं। अगर मान लो हमारे यहाँ आसपास, हमारे घर पे जब हम देखते हैं स्पेस नजर नहीं आती हमारे आसपास, राइट, हमारा जो स्टोर रूम होता है, बट हम उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं स्पेस को, तो वही स्पेस ज्यादा लगने लग जाती है, हमें कोई अलग से स्पेस तो नहीं क्रिएट करनी होती। सेम थिंग गोज विद सिंप्लीफिकेशन। जितना आप किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे वो उसकी कॉस्ट उतनी कम हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो ये पांचों एलिमेंट है इरोस के। आपको मुझे ये बताइए, आर यू अलाइंड विद मी कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपको जो एक्सपेंसेस हैं जो आपके जितनी भी कंपनी में, उनको आपको आपको पांचों लेंस से गुजारना है। आपको ये पूछना है, ये सवाल पूछना है कि क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। और आपको ना ये पूछना है। इट विल बी लिटिल हार्ड, आपका माइंड बार बार रो बोलेगा यार क्या कर रहा है, ये तो मुझे पता है सारा, बट लेट मी टेल यू गाइस, आप यू विल बी सरप्राइज। आप अपने बिजनेस के बारे में, आपको लगता है आप चेक साइन करते हैं, एनईएफटी पे करते हैं, बट आपको नहीं पता बहुत सारी चीजें। और मैं अभी आपको जब ये सेकंड एलिमेंट बताऊंगा कॉस्ट रिडक्शन का, सॉरी थर्ड एलिमेंट बताऊंगा, तब आप हिलेंगे, तब आप कहेंगे चंदन आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है, ग्रेट। तो पहला हम बात करते हैं एलिमिनेट की, कि एलिमिनेशन का क्या मतलब है, क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ना सब्सक्रिप्शंस होती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस होती हैं, आपकी एप्पल के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस आप ले लिए होते हैं, और उनमें पैसा जा रहा होता है लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपकी कंपनी में आप अगर ध्यान से देखेंगे बहुत जगह पे डुप्लीकेशन होता है, चाहे अप्रूवल हो कुछ भी हो, वहां पे आप उन डुप्लीकेट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इससे रिलेट करेंगे कि जो वेस्टेज होती है वो सबसे बड़ा घर होता है कॉस्ट के बढ़ने का, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे एक ये एलिमिनेशन एक कंपनी ने किया था, ये वर्कशॉप करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी कंपनी से हटा दिए थे, क्योंकि वो एक शेयर्ड बिल्डिंग में थे जहां पे मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होते थे, और वहां पे उन्होंने बर्गलर अलार्म डिवाइस लगा दिया था। और आजकल आप इसका एग्जांपल देखते हैं, जितने भी एटीएम्स हैं, पहले हर एटीएम के बाहर एक गार्ड बैठता था। डू यू रिकॉल दैट डेज 4-5 years बैक? एवरी एटीएम वॉज बीइंग गार्डेड बाय वन गार्ड, राइट। और वो गार्ड होते थे 24 घंटे के गार्ड होते थे। तो 24 घंटे के गार्ड का मतलब है वो 8 घंटे की ड्यूटी करते थे, 4 घंटे का ओवर टाइम लेते, तो करीब करीब 30,000 मिनिमम खर्चा था एक गार्ड का। डू यू अग्री विद मी दैट कि मिनिमम 30,000 का खर्चा था हर एटीएम पे। अब आपको, जब आप आज की डेट में किसी एटीएम पे जाते हैं तो आपको कई गार्ड दिखते हैं, ना के बराबर होते हैं, वो गार्ड नहीं होते वहां पे। तो उन्होंने क्या करा, उसको एलिमिनेट कर दिया थ्रू बर्गलर अलार्म डिवाइस। सो दिस इज सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू।
आप इन एग्जाम्पल्स को, जरूरी नहीं है कि सारे आपकी कंपनी में फिट बैठे, बट इट विल हेल्प यू टू ओपन अप योर माइंड सेट, राइट? दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ शेयरिंग फ्यू एग्जाम्पल्स। ये मत सोचिएगा कि सारे एग्जाम्पल आपके उसमें फिट बैठे, शायद ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा स्टिर करेगा, ठीक है? सेकंड, ऑटोमेट। अब ऑटोमेशन का ना बहुत जगह पे हम देखते हैं कि ऑटोमेशन के लिए ना आपको जरूरी नहीं है कि कोई ईआरपीज लेने हो। ऑटोमेशन का आप केवल गूगल शीट को यूज करके भी ऑटोमेट कर सकते हैं कुछ चीजों को, ठीक है? तो ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत खर्चा करना है, कुछ जगह पे आप कर सकते हैं, जैसे आरपी होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कुछ कंपनीज में अगर कोई बहुत रेपिटेटिव काम है, कोई एक प्रोसेस है बहुत रेपिटेटिव तरीके से चल रही है और 4-5 लोग लगे हुए हैं उसमें, तो आप एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है जो कि एक तरह से एक ह्यूमन बीइंग को मिमिक करता है पीछे। जैसे आपने, इसका क्रूड एग्जांपल है मैक्रो। एक्सेल में आपने मैक्रो सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैक्रो इन एक्सेल? कुछ लोग ने अगर एक्सेल को यूज किया हो अच्छे तरीके से तो आप शायद अवेयर हो। तो ये मैक्रो का 100 टाइम्स रिफाइंड फॉर्मेट है, आप ये समझ लीजिए, आरपीए और कुछ नहीं है। तो इस तरह का आप ऑटोमेशन अपनी कंपनी में कर सकते हैं। एक्सपेंसेस अप्रूवल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आपकी कंपनी में है उसको आप रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए और उसको किसी टीचेबल पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, जिससे कि वो ऑटोमेट हो जाए और आपको ये तक पता चल जाए कि आपके एम्प्लॉय ने कब वो ट्रेनिंग देखी, कितने समय के लिए वो ट्रेनिंग देखी। एंड ऑल आर ऑलमोस्ट वर्चुअली फ्री or maybe at a very fraction of cost you can get these portals. Then you can look at the preventive control. अब प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होते हैं कि आपकी कोई चीज अगर होने वाली होती है उसको रोक देते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर आपकी कंपनी में। आपको देखना चाहिए कि प्रिवेंटिव कंट्रोल कहाँ लगे हुए हैं और डिटेक्टिव कंट्रोल कहाँ लगे हुए हैं। जितना आपकी कंपनी में प्रिवेंटिव कंट्रोल लगेंगे उतने आपको फायदा होगा। जैसे आपको मैं उसका क्रूड एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको कोई फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है और आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, तो ईमेल आईडी जैसे ही आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डाला chandan.goyal@blueconsulting.co.in, गलती से मेरा @ नहीं लगाया मैंने, तो इमीडिएटली वो पॉपअप करता है, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता कि आपकी ये गलत है मेल आईडी, ठीक है? तो इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो कंट्रोल वहां ना लगा हुआ हो और मैंने केवल chandan.goyal@blueconsulting.co.in डाल दिया, अब होगा ये कि उनके लिए रिवर्क हो जाएगा। जिस कंपनी के पास मेरा फॉर्म जाएगा वो मेरे फोन नंबर पे पहले मुझे फोन करेंगे, सर ये तो आपकी मेल आईडी गलत है। तो आप देखिए उनको कितना समय लगा उसको करने में, वेयर एज उन्होंने वहीं पे वो कंट्रोल बिल्ट कर दिया फॉर्म के अंदर ही। तो इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस आपको देखने हैं इस एग्जाम्पल से कि आप अपनी कंपनी में कितना प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब हमें कोई डिजीज हो जाती है वर्सेस कोई एक हेल्दी आदमी है, बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो क्योर से बेटर है, क्योंकि आपको जब क्योर करना होता है, क्योर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, वेयर एज प्रिवेंशन इज इजी। मॉर्निंग में अगर आपको आज की डेट में कोई डिजीज नहीं है तो 30 मिनट की वॉक इज नॉन एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज हो गई तो उसके बगैर आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट को अगर हायर करना है या कुछ और प्रोसीजर करनी है, दैट बिकम्स एक्सपेंसिव। तो यू नीड टू लुक फॉर प्रिवेंटिव कंट्रोल इन योर कंपनी. Then let's talk about the reduce. So what I mean by the reduction. तो रिडक्शन से क्या मेरा मतलब है कि रिडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे अगर फंडिंग कॉस्ट है आपकी कंपनी में हाई है, तो आपको उसको देखना है कि फंडिंग कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट के केस में है तो कुछ जगह पे स्क्रिप्ट्स मिलती है, जैसे जो बिजनेस ओनर को कुछ बेनिफिट मिलते हैं एक्सपोर्ट करने पे, तो अगर आप उनसे वो स्क्रिप्ट बाय करते हैं तो आप करीब करीब 2 से 3% डिस्काउंट पे वो स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, तो आप अपनी कस्टम ड्यूटी को पे करने में वो यूज कर सकते हैं। फिर ये तो खैर हो ही चुका है, कोरोना ने फिजिकल मीटिंग जो क्लाइंट्स के साथ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ऑलमोस्ट कम कर दी है। न्यू क्लाइंट के साथ आप हमेशा फिजिकल मीटिंग करिए, बट जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको आप वर्चुअल मीटिंग पे ले आइए मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को। दूसरा, आप जो फिजिकल लॉन्च जो करते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आप वर्चुअल लॉन्च पे ले जा सकते हैं आज की डेट में, जो कोरोना ने पॉसिबल होकर दिखाई दिया है, पहले लगता था कि पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड जो लास्ट है कि ओवर टाइम को आप देख सकते हैं कि कैसे रिड्यूस किया जा सके। इसी तरह से हम जो आउटसोर्स के ऊपर सोच सकते हैं कि जो आपका नॉन कोर फंक्शन है या नॉन कोर प्रोसेसेस है आप उसको आउटसोर्स करिए। वेयर हाउसिंग को आज की डेट में बड़े अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, कस्टमर केयर को आप आउटसोर्स, तो जो भी प्रोसेस आपको लगता है कि इफेक्टिवली आप नहीं चला पा रहे हैं और उसके एक्सपर्ट मार्केट में मौजूद हैं, तो आप उनको आउटसोर्स कर दीजिए। जैसे ट्रकिंग के ऊपर आज की डेट में चलता है, फ्रेट का काफी लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है, राइट? तो इस तरह की चीजें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिपोर्ट्स,
आप ये चीज मान के चलिएगा, अगर आपकी कंपनी में 10 रिपोर्ट्स बनती हैं तो 6 से 7 रिपोर्ट्स आपके काम की नहीं होती, वो केवल इसलिए बनती है कि वो बनती चली जा रही है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। बहुत सारी रिपोर्ट्स को आप देखते भी नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट बनाने में ना आपके बंदे का टाइम लगता है। अच्छा आप मुझे बताइए, डू यू अग्री विद मी और नॉट, कि अगर रिपोर्ट्स, खैर आप कुछ ये भी कह सकते हैं कि हमारी कंपनी में तो रिपोर्ट बनती नहीं है जी, हम तो चाहते हैं कुछ रिपोर्ट बने, ऐसा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम रिपोर्ट्स आई कैन assure you with my own experience working with hundreds of the company, majority of the reports are there just for the sake of कि वो चल रही थी, कोई इसको क्वेश्चन नहीं करता, राइट। फिर एक्सेप्शन बेस्ड अप्रूवल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई काम उसमें जो आप अप्रूव करते हैं कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और उसमें जो खर्चा आता है वही अप्रूव होता है, तो आप उसको एक्सेप्शन बेस्ड कर दीजिए कि भाई ठीक है, मैं 10,000 से ऊपर का ही खर्चा अप्रूव करूंगा या 50,000 से ऊपर का ही खर्चा अप्रूव करूंगा, ताकि आपका जो बैंडविड्थ है वो बचे। आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो उसके लिए। दूसरा, बहुत सारी कंपनी में ना जो थोड़े ट्रेडर या जो डीलर अपॉइंट करते हैं, वहां पे इंसेंटिव और कमीशन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, तो आप उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे आपके लोगों का समय बचे और वो एक प्रोडक्टिव कामों में लग सके। सिमिलरली जो आपकी क्वेरी हैंडलिंग का तरीका होता है, बहुत बार आप देखते हो कस्टमर केयर में आप कहीं फोन करते हो तो कुछ कंपनीज की बहुत इजी होती है क्वेरी हैंडलिंग का तरीका, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपके बिजनेस में भी आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसकी क्वेरी हैंडल करते हैं, सो यू कैन लुक ऑल द प्रोसेसेस एंड देन यू कैन लुक एट हाउ यू कैन simplify that. So that was basically Eros. So guys, tell me, are you getting some value from this, what I am sharing? If you're getting some value, please type value in the chat box, value in the chat box. I want, in case you are, if you're not getting, that's fine. If you're getting value, please type so that I can sense that whatever I'm sharing is resonating with you. Okay, great, super. So we are good so far. And we have approximately 45 to 50 minutes left and we are well on time. So I'll be finishing this on time and we'll have some, I think 10-15 minutes in the end to have your Q&A or your questions or your queries. Great. So now let's move to the second element of the cost reduction foundation. ये कोस्ट रिडक्शन फाउंडेशन का सेकंड एलिमेंट है परेटोज लॉ। और परेटो क्या थे? परेटो वाज द विल्फ्रेड परेटो वाज हिज फुल नेम एंड ही वाज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट। और वो आज से 100 साल पहले इस अर्थ पे आए थे, मतलब ही बेसिकली वाज इन 1902 और समवेयर ही डाइड। और उन्होंने एक ऐसे कुछ वो रिसर्च कर रहे थे एंड ही काइंड ऑफ स्टम्बल अपॉन दिस लॉ व्हिच बिकेम और वी नो एज अ परेटोज लॉ। परेटो क्या बोलता है कि परेटो कहता है कि आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में, नॉट ओनली बिजनेस, किसी भी एरिया को आप उठा के देख लो, वो ये कहते हैं कि जो 20% एफर्ट्स होते हैं वो आपके 80% रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये, और 80% जो एफर्ट्स होते हैं वो 20% रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बेसिकली परेटोज लॉ। इसको लोग 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं, 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स 80/20, 80-20, 80-20. I want you this to be brain tattooed in your mind. I want this to be brain tattooed in your mind. 80-20. तो आपको आज के बाद अपने बिजनेस के सारे डिसीजन 80-20 के बेस पे लेने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से 20% एफर्ट्स हैं जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अगर उन कोस्ट को पकड़ लोगे ना, कि जो 20% आइटम है आपके ट्रायल बैलेंस में या आपके लाइन आइटम से, उनको अगर आप केवल कंट्रोल कर लोगे ना, वो आपकी 80% कोस्ट को इम्पैक्ट करेंगे। वो होंगे लाइन आइटम केवल 5 या 6, लेकिन खर्चा उसका 80% हो रहा होगा। तो आपको बेसिकली जो 20% के ऊपर पूरा फोकस करना है। और उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप शायद रिलेट कर पाए कुछ जगह पे, कि 20% ऑफ द इन्वेंट्री आइटम्स माइट कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ योर स्टॉक कॉस्ट। 20% ऑफ योर एक्सपेंस हेड्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी में कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस जिसमें बहुत सारे होते हैं, ईमेल भी होता है, लीज लाइन भी होती है, टेलीफोन भी होता है, मोबाइल भी होता है। हो सकता है कि 20% ऑफ द आइटम्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ द एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में हमारे पास एक लीज लाइन है, डेडिकेटेड लीज लाइन। तो हमारा जो खर्चा आता है कम्युनिकेशन का, हेड बनता है जहां 7-8 लाइन आइटम होते हैं, उसमें केवल लीज लाइन का जो खर्चा है वो 80% है। तो हमने जब कोरोना के टाइम पे हमने केवल लीज लाइन को नेगोशिएट किया और हमारा खर्चा काफी नीचे आ गया था। तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में 80-20 क्या है। In fact, 20% of the employees might be responsible for 80% of the cost and revenue. ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं
केवल 20% एम्प्लॉई हो जो कि आपके 80% कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आर यू एबल टू रिलेट विद दैट? इज इट क्लियर? अगर आपको क्लैरिटी आ गई है तो लिख दीजिए क्लियर, चैट बॉक्स में एक बार टाइप करिए क्लियर। आपको क्लियर हो गया ना? मैंने जो एग्जांपल आपको इसीलिए दिए हैं कि आपको सारे तो शायद रिलेवेंट नहीं हो, बट आपको कुछ कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब हम चलते हैं जो लास्ट जो इसका एलिमेंट है कॉस्ट रिडक्शन फाउंडेशन का, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है और बिहेवियरल भी है, लेकिन हमारी जो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे बिजनेस से अलग नहीं है, राइट? हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? Sometime our behavior impact like it reduces or increases our cost, right? है ना, हमारा बिहेवियर ही तो और क्या है। तो ये थोड़ा सा जो थर्ड एलिमेंट है ये आपके बिहेवियरल उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 लेटर मैजिकल कोड है ये है should I disclose it? So are you excited to receive this 3 letter code? So guys, I want you to be excited and I want your excitement and I want you to have full focus on your screen and on my voice. Okay guys, so let me reveal with your excitement and with your energy, let me reveal the 3 letter code. And this 3 letter code is nothing but, can you guess it? Can somebody can guess this? Can now somebody guess? The only one letter is left. Absolutely. So this is ask. This is ask. ASK. Simple. जिंदगी में जो हम बात करते हैं कि जो हम पूछते हैं कि कोई चीज, अगर हमें किसी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं होती तो हम पूछते हैं ASK. ASK. I want each one of you to write ASK in the chat box. ASK, ask. It is nothing. It is not an acronym. It is a simple English word. Ask. 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 होता क्या है, हम अपनी लाइफ में ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके होते हैं ना, जब हम कॉलेज से निकलते हैं, कोई डिग्री ले लेते हैं, तब तक तो हमारा आस्क चलता है। जैसे आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, क्योंकि तब तक हमें लगता है ना हम स्टूडेंट हैं, हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हम पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ बन जाते हैं, हमारा आस्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आस्क की जगह पता है क्या उसका उसका कौन रिप्लेस कर देता है आस्क को? कैन समबडी कैन गेस दैट? आस्क को रिप्लेस कौन करता है फिर? एग्जैक्टली, आई नो। और इसका दूसरा टर्म है assumptions। इसके दूसरी टर्म क्या है? assumptions। हम आस्क की जगह क्या करते हैं? हम अज्यूम करने लगते हैं बहुत सारी चीजों को। हमें पता है। और आप मुझे बताइए कि हम अज्यूम क्यों करते हैं? आप बता सकते हैं इसका क्या रीजन होता है कि हम क्यों अज्यूम करते हैं कोई चीज को? क्यों अज्यूम करते हैं? बहुत जगह हमें लगता है हम पूछ ले, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करके उस पर डिसीजन ले लेते हैं। क्यों करते हैं हम अज्यूम? कोई पर्टिकुलर रीजन? ईगो है। बहुत बढ़िया संजीव जी, ईगो की बहुत बड़ी रीजन है। आई नो भी ईगो में ही आ गया। वी डोंट वांट टू आस्क। क्यों? लेकिन क्यों नहीं पूछना चाहते हम? वी शाई अवे फ्रॉम आस्किंग। हमें शर्म आती है, हमें लगता है कि हमें कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। लुकिंग गुड होता है वहां पे, है ना? और क्या होता है जो बिल्कुल आपके बेस पे है वो बताइए, जो आप रिलेट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हमारी कंडीशनिंग सबकी अलग अलग है। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबके लिए ओपन अप करेगा। जब आप शेयर करते हैं ना अपनी कोई भी चीज चैट बॉक्स में, तो बहुत सारे लोगों के लिए नया रियाल्म ओपन होता है। एब्सोल्युटली संजीव जी, वी विल बी जज्ड, हेजिटेशन, ईगो, एब्सोल्युटली। और क्या है? पीयूष बोल रहे हैं आई ऑलवेज आस्क। वेरी गुड। लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, वी नो एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको बता दूं 3 चीजें बड़ी बेसिक सी चीजें होती है जो हम अजम्पशन क्यों करते हैं और आस्क क्यों नहीं करते। अच्छा हाँ, वो ये लोग पूछेंगे, प्रीत कह रहा है कि इसको ये भी नहीं पता, है ना? तो पहला तो रीजन होता है, साइकिक रीजन होता है, हम क्यों नहीं पूछते और अज्यूम क्यों करते हैं कि हमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। हमें ये लगता है यार हम पूछेंगे एंड किसी ने मना कर दिया कि आप ये करोगे नहीं करोगे, तो फियर ऑफ रिजेक्शन आता है आस्क करने में। दूसरा होता है कि हम इसलिए नहीं पूछते कि हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ जाएगा, कि अगर हम इससे पूछ लेंगे, मान लो क्लाइंट से कुछ पूछ लिया कि हमें कोई क्लैरिटी लेनी है, तो क्लाइंट कहेगा ये भी कर दो। थर्ड होता है जो कि ईगो, जो हम सब बात कर रहे थे, वो है सुपीरियरिटी सिंड्रोम। हमें ये लगता है कि भाई हमें सब पता है। तो जो ईगो, आई नो और सुपीरियरिटी सिंड्रोम इज वन थिंग। अब मुझे ये बताइए कि कभी लाइफ में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आई है, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने किसी से पूछा इंस्टीड ऑफ
आपके पास चॉइस थी कि आप अज्यूम कर लें, लेकिन आपने पूछा तब भी, तो क्या आपको लगा कि आउटकम वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन व्हाट व्हिच यू वर अज्यूमिंग? आपके साथ ऐसा हुआ है कई बार? आई एम श्योर आपको सबको कभी ना कभी ऐसा जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ सोच रहे थे और आपने हिम्मत करके पूछ लिया और आपको लगा ये तो एकदम ही ऑपोजिट है यार, 180 डिग्री शिफ्ट हो गया ये तो, और आपको बहुत सारे रीवर्क से बचना पड़ गया उस समय। ऐसा हुआ? एग्जैक्टली तो मैं आपको एक छोटा सा एक मैं आपको एक ये वीडियो मैं आपको प्ले कर रहा हूँ, ये आप शायद रिलेट कर पाए। बड़ा डैशिंग लग रहा है तू आज। थैंक्स, बट मैंने नहीं पूछना। छोटी सी चीज तो बोल रहा हूँ पूछने को, मतलब तो छोटी सी चीज है तो तू ही पूछ देना, मतलब। एक्सक्यूज मी अंकल जी, कैन आई प्लीज गेट अ लिफ्ट टिल विक्टोरिया होटल? यस। पूछने में क्या जाता है। अच्छा, आपको आपको समझ आया कि क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका, ये छोटे सी बात का? ये सबको याद है, ये टाटा स्काई की बड़ी फेमस ऐड है, इसकी 8-10 वो आती थी। तो आपको ये लाइफ में मेरा ये सजेशन है, ये बड़ा अच्छा आपको हेल्प करेगा कि लाइफ में कि मंत्रा बना लीजिए, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एग्जैक्टली अमित ने लिखा है कि पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो आपको जब भी कभी भी ये हेजिटेशन हो कि ये मुझे अज्यूम करूँ या पूछूं, तो ऑलवेज आस्क 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 आस्क। और ये आस्क आपको, आप कहेंगे कि यार ये कहाँ से आपको कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा? कॉस्ट रिडक्शन में इसलिए हेल्प करेगा कि आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को अज्यूम करके बैठ जाते हैं। आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है, जबकि जैसे ही आप उसको क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको इतने रियल में ओपन हो जाएंगे, आप कहोगे यार ये तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आपको इसके ऊपर ना एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी शायद आपने सुनी हुई हो, लेकिन फिर भी आपको ये हेल्प करेगी। सो ये जो स्टोरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये सब लोगों ने सुनी होगी। हुआ क्या था कि एक बार, ये ग्रेट ब्रिटेन की स्टोरी है, इंग्लैंड की है। तो वहां पे क्या हुआ था कि एक जो रॉयल सिमेट्री थी, जहाँ पे जो किंग्स और उनके जो एंसेस्टर्स और उनके जो सक्सेसर्स है उनको दफनाया जाता है, तो वहां सिमेट्री में एक बार एक एडमिन हेड आए जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। तो एडमिन हेड आए तो उन्होंने देखा कि यार जितनी भी ग्रेव्स बनी हुई है उस सिमेट्री में, करीब 200-250 ग्रेव्स थी पुरानी, 200-250 सालों से। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक पर्टिकुलर ग्रेव के पास एक गार्ड खड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने जो जूनियर्स थे उनसे पूछा, उन्हें एडमिन हेड ने, कि भाई यहाँ पे गार्ड क्यों खड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि सर मैं पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा सर यहाँ तो बहुत समय से गार्ड खड़ा ही हुआ है, मतलब हम जब से आए हैं 10 साल 15 साल से, वन गार्ड इज स्टैंडिंग ओवर देयर। तो उन्होंने कहा, एडमिन हेड ने कहा, नहीं पूछो इसका पता लगाओ कि क्यों खड़ा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो उन्होंने क्या करा, उसके उनके एडमिन के डिपार्टमेंट ने करीब 10-12 दिन लिए और उन्होंने पीछे 200 साल के रिकॉर्ड देखे, एंड दे वर सरप्राइज। पिछले 200 सालों से, कैन यू बिलीव इट, पिछले 200 सालों से उस ग्रेव यार्ड पे कोई एक गार्ड, कोई ना कोई गार्ड खड़ा हुआ था। ऑब्वियसली किसी गार्ड की लाइफ 200 साल नहीं होती, कोई गार्ड 30 साल होगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा गार्ड आया होगा, बट कोई ना कोई गार्ड 200 साल से उस ग्रेव यार्ड के पास पहरा दे रहा था। जब उन्होंने उसका एग्जैक्ट रीजन पता चला, जब उन्होंने पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स गए, तो ये पता चला कि दैट वाज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आई थिंक 6 year or 7 year old डॉटर ऑफ अ किंग, एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फ्लावर। और वो उस फ्लावर को केवल 3 या 4 महीने, उसको जब प्लांट किया गया था, उसको टेक केयर करने के लिए 6 महीने के लिए किसी गार्ड को वहां खड़ा किया गया था, ताकि वो सस्टेन कर सके वो प्लांट उसकी ग्रेवयार्ड के आसपास। और उसके बाद किसी ने भी नहीं पूछा कि भैया वो गार्ड क्यों खड़ा है। कैन यू रिलेट दिस इन योर लाइफ समवेयर, दैट वी डोंट आस्क एनीथिंग इन अवर लाइफ, वी जस्ट अज्यूम कि जो चीजें जैसी चल रही है वो वैसी ही चलनी चाहिए थी, इसीलिए चल रही है। यही रीजन है कि हम बहुत सारी जगह पे बिल्कुल मुंडेन तरीके से चल रहे होते हैं, एक रोबोटिक तरीके से चल रहे होते हैं। हमारी कंपनी में हमें हर साल एटलीस्ट 1 या 2 दिन लगा के केवल आस्क आस्क और आस्क करना चाहिए, हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इतनी इतनी चीजें आपको पता चलेंगी, एंड यू विल बी ब्लोन बाय दैट। और आप कहोगे यार मुझे तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी, ये तो सब चीजें जैसे मैंने सोचा था 10 साल पहले जब धंधा शुरू किया था, या 20 साल पहले जब धंधा शुरू किया था, तो ऐसे ही था ये तो, है ना। तो ये आपको बेसिकली ब्रेन टैटू करना है। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा था कि स्टोरीज समटाइम रेजोनेट विद अस इन अवर माइंड एंड इट स्टेज फॉर लॉन्गर। जो गार्ड वाली स्टोरी है,
तो ये आपको हेल्प करेगी इसको रिटेन करने में. So that was the third element. So basically this story complete the cost reduction foundation, which is built. The first element is EROS. What is the second element? Can somebody tell me what is the second element of cost reduction foundation? It's just a revision so that all of us are on the same page. Absolutely. It's a Pareto 80-20, right? It's a 80-20. And what is the third one, which we just finished? Third foundation, the third element of the foundation, ask. It is push dala to life jhinga lala. You need to keep this as a brain tattoo, and you are rightly said that just keeps repeating this. So you already have some relationship with this ask or push dala to life jhinga lala. ठीक है. इसके ऊपर मैं बहुत सारे और भी एग्जांपल शेयर कर सकता हूं, बट इसके अभी हमारे पास टाइम का जो है वो थोड़ा सा हमारे पास कम है. तो अदरवाइज मेरे पास आस्क के ऊपर तो इतने एग्जांपल्स हैं. जब भी आप आस्क करते हो कुछ ना कुछ नया रियल्म खुलता है लाइफ का, राइट. ठीक है जी. नाउ वी लेट्स मूव टू द अच्छा, ये मुझे बताइए, दिस कोस्ट रिडक्शन फाउंडेशन, डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल टू अप्लाई इन योर कंपनी? इफ इट इज प्रैक्टिकल, प्लीज टाइप कैपिटल P इन द चैट बॉक्स. कैपिटल P इन द चैट बॉक्स. अच्छा, केवल 2 लोगों को ही लगता है. ओके ओके ओके. अच्छा, 6 लोग कह रहे हैं केवल कि प्रैक्टिकल लग रहा है, बाकी लोगों को थियोरेटिकल लग रहा है शायद. ओके, अच्छा नहीं, ठीक है. गुड गुड गुड. ठीक है. थैंक यू सो मच guys. Everything what I'm sharing with you is absolutely tried and tested 100 times. तो आपको केवल इसके ऊपर एक बार भरोसा करना है. आपका इसमें you don't have anything to lose, only thing to gain. You need to just ask. Assume मत करो और already know से operate मत करो, बस. Now we come to the takeaway number 2, and this takeaway number 2 is super I would say effective, if I need to use that word. It's a highly effective, लेकिन maximum business don't leverage or don't use the power of this takeaway or this strategy which I am going to share with you. जब आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगी, आप कहेंगे यार इतनी सिंपल है, लेकिन हम इसको यूज क्यों नहीं करते हैं. यू माइट रिग्रेट that you are not using this strategy till now. So let me share. So guys, again, let's build up some excitement and some energy. So are you excited for takeaway number 2? Takeaway number 2. And that takeaway number 2 is the ultimate strategy with some case studies which I'm going to share with you. So if you're excited, please type small y in the chat box. Small y in the chat box, just to check that whether you are awake and whether you are aligned, you are near to your screen. Okay, super. क्योंकि आजकल क्या है, लोग स्क्रीन पे के सामने तो होते हैं, बट वो उसमें एयरपोर्ट लगा के घूमते होते हैं घर में, है ना, तो आसपास नहीं होते. इससे ये पता चल जाता है आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हैं. ओके, ग्रेट. तो दूसरा जो आपका टेक अवे है वो है गोल्ड इज एट द बॉटम. गोल्ड इज एट द बॉटम. अच्छा, मुझे ये बताइए, गोल्ड इज एट द बॉटम की जब मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे, तो गोल्ड इज द बॉटम से मैं आपको पहले एक सवाल पूछता हूं. लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. लेट मी आस्क, और इसको ध्यान से सुनना. आपकी कंपनी में कहां पर और किसके बीच में डिस्कशन होती है कॉस्ट रिडक्शन की? जब भी आप अगर कभी कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वेयर, व्हाट इज द प्लेस इन योर कंपनी? क्या किस प्लेस पे आप डिस्कस करते हैं और किसके बीच में डिस्कशंस होती हैं कॉस्ट रिडक्शन की? बोर्ड रूम एंड लीडरशिप. एब्सोल्युटली. व्हाट एल्स? और बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? आप जब भी किसी से डिस्कस करते हैं तो आप किससे बात करते हैं? अपने किसी सीनियर पर्सन से बात करते हैं जो फंक्शनल हेड्स हैं, या आप अकाउंट से बात करते हैं जिनके पास मेंटेन होती है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की डिटेल? एम्प्लॉइज से बात करते हैं, नेहा कह रही है. बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली कुमार, वर्टिकल हेड्स एंड ऑप्स, है ना. अच्छा, डिंपल कह रहे हैं स्पाउस से बात करते हैं. ओके, गुड. तो अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट और रेस्पेक्टिव हेड से बात करते हैं, राइट. अब मुझे ये बताइए कि जहां कॉस्ट रिडक्शन की जब बात होती है, या जो चीजें आपकी कंपनी में चलती हैं, तो जो आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं वो बिजनेस से क्लोज होते हैं, या आपके जो फंक्शनल हेड या वर्टिकल हेड क्लोज होते हैं? किसको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता होती है आपकी कंपनी की? मगर आपकी कंपनी मान लो 25 लोग हैं और 5 फंक्शनल हेड हैं
और 25-20 फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज हैं। तो जो ये फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज हैं, जो एकदम ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉइज हैं, किसको पता होता है बिजनेस की रियलिटी? आर वी अलाइंड ऑन दिस कि ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं, जो एकदम रोजमर्रा में उस चीज को जी रहे होते हैं, कस्टमर को फेस कर रहे होते हैं, उनको पता होता है, और सारे खर्चे उन्हीं के हाथ से होते हैं, उन्हीं के ऊपर होते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा फ्लो है कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए जितनी भी डिस्कशन होती है वो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय से कभी नहीं होती, और वहीं पे गोल्ड छुपा हुआ होता है। सो दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी, गोल्ड इज एट द बॉटम। गोल्ड इज एट द बॉटम। एग्जैक्टली, एम्प्लॉइज आर, जो सबसे फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज होते हैं, वही लोग, उन लोगों को सबसे ज्यादा आइडियाज होता है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, और हम उनको कभी भी उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं इस चीज के लिए, उसको पूछने के लिए कि भैया कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है। हमें लगता है उनको तो पता ही नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आप जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्यों पता होता है, किस वजह से उनको ज्यादा आइडिया होता है कॉस्ट रिडक्शन का? कैन समबडी टेल मी? कैन समबडी टेल मी क्यों पता होता है उनको? जो एम्प्लॉइज होते हैं, रियल ऑप्स, ओके, व्हाट एल्स? They know where is the wastage, they are close to execution, actually flag bearers because they are doing it every day. Absolutely. What else? What else? मुझे एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं जो अभी आप नहीं बता रहे हैं. I want to pick your mind on that. Otherwise, I'll obviously share with you. Direct customer voice. What else? Attention to detail. Very good, Sudeep. You are close. They are in touch with other people and also they see how other work. Very good. Unbiased view. Wonderful. Pain. What is this? Pain error. ARER. Pain area. Okay. Pain area. Got it. What else? Anything new? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज होते हैं, आप ये मेरे से एग्री करते हैं, उनकी बेसिक जो सैलरी स्केल होता है 20 से 30,000 होता है। हम जैसे जो बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं, आर यू, हम अलाइंड है उस पे? 20-30,000 वाले लोग होते हैं जो फ्रंटलाइन पे होते हैं हमारे, राइट? अब आप ये देखिए कि पहली चीज तो वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। दूसरा, पता है सबसे ज्यादा दर्द होता है उनको, पैसा अगर वेस्टेज होता है, वो पता है क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा होता है। जो आदमी 20 से 30,000 रुपए कमाता है और उसको पूरी फैमिली पालनी होती है ना, उसको पता होता है कि 1,000 रुपए बचाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। डू यू अग्री विद मी और नॉट? जो बंदा 2 लाख रुपए महीने के कमाता है, उसको 1,000 रुपए नहीं चुभते वेस्टेज, लेकिन जो बंदा 20,000 रुपए कमाता है ना, उसको 500 रुपए भी कंपनी के बर्बाद होते हैं। हम सुनते नहीं उनकी बात, लेकिन उनको ना चुभता है, और लास्ट में वो फिर जब बैठते हैं वो पीछे से यही बात करते हैं, ये इनको समझ तो आता नहीं, करने दो बर्बादी, हमें क्या फर्क पड़ता है। लास्ट में फिर वो यही कहते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ये देखिएगा कि जो 20 से 30,000 वाले लोग होते हैं ना, इनको मार्केट में नौकरी जल्दी से कई बार नहीं मिलती है, एक एज के बाद, राइट? जो अगर ये 45 की उम्र क्रॉस कर जाते हैं और उनकी तनख्वाह अगर 20 से 30 जा रहे हैं, तो उनको मार्केट में जॉब नहीं मिलती है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? तो उनको क्या होता है कि उनकी कंपनी की तरफ ना लॉयल्टी बहुत होती है, और उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत होता है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होता है। वेयर है जो आपके ये मैनेजर होते हैं ना, मेरी मैनेजर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जो आपके ऑपरेशन हेड्स है, दे आर गुड पीपल, वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब बदलते रहते हैं। वो 2 साल यहाँ टिकेंगे, 3 साल वहां टिकेंगे, फिर 3 साल आगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनका नेचर ऐसा ही है। लेकिन जो लोग आपकी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब अपना करियर देखते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, हम उनको हार्डली किसी इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करते हैं, ये सोच के कि इनको कुछ नहीं पता, जबकि रियल बिजनेस की नॉलेज ना उन्हीं लोगों के पास है। और अब मैं आपको इसको 2 केस स्टडीज में आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इन्वॉल्व करके अपने कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए का बेनिफिट ले सकती है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये चीज हम क्यों इसको यूज नहीं कर रहे हैं? तो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर 2 अमेजिंग केस स्टडीज व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू? इफ यू आर एक्साइटेड, प्लीज टाइप एक्साइटेड फुल वर्ड इन द चैट बॉक्स। एक्साइटेड, थोड़ी मेहनत करिए, फुल वर्ड एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, सुपर। तो हम पहली केस स्टडी शेयर करते हैं। ये हमारे क्लाइंट ही है, तो मैं इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये कंपनी एक एमएनसी है वैसे, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है इनका, नोएडा में ही इनका प्लांट है।
इनका करीब 400 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है और ये लोग लीडर है डिजिटल प्रोजेक्शन और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, मतलब ये मोनोपोली है इनकी, ठीक है। इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी करीब 7 साल पहले। एम्प्लॉइज को जो बॉटम लाइन के एम्प्लॉइज है ना, उनको बेसिकली वहां पे इन्वॉल्व करने की, और इसको ये जापानीज एक टर्म है आई गैम्बा, मतलब गैम्बा वॉक किसी ने सुना है? एनीबडी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड गैम्बा वॉक? शायद किसी ने सुना हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं सुना कोई बात नहीं। तो जितने भी आजकल लीन कह लीजिए या सिक्स सिग्मा कह लीजिए, ये उसी का ही एक पार्ट है, समझिए, गैम्बा वॉक। तो गैम्बा वॉक में क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, जो ग्राउंड लेवल का एम्प्लॉय है, कि वो जाके अपनी प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करे जैसे वो काम करता है, और उसमें अगर कोई उसको लगता है कि उस प्रोसेस को ठीक से इंप्रूव किया जा सकता है, कोई उसके अंदर एलिमिनेशन के चांसेस है, रिडक्शन के चांसेस है, ऑटोमेट के चांसेस है, जो हमने बात करा, तो वो अपने आइडियाज देते हैं और उन आइडियाज को फिर ये कंपनी इवेल्युएट करती है एंड देन दे फाइंड आउट द बेस्ट प्रैक्टिकल आइडिया एंड देन इम्प्लीमेंट दैट। तो हुआ क्या कि इन्होंने ये प्रैक्टिस जो गोल्ड एट द बॉटम, हम अभी आई गैम्बा छोड़ देते हैं, उनको उन्होंने आई गैम्बा बोला, पर आप अपने माइंड में ब्रेन टैटू कर लीजिए गोल्ड एट द बॉटम, ठीक है ना, गोल्ड एट द बॉटम, GAB, गोल्ड एट द बॉटम, आप उसको अपने माइंड में रखिए। उन्होंने ये शुरू किया 8 साल पहले प्रैक्टिस। ये क्या करते हैं कि इनको करीब हर साल 200 से 250 आइडियाज आते हैं एम्प्लॉइज से, जो इनकी कंपनी में काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज हैं, जिनकी तनख्वाह वही 20 से 30 हजार रुपए। जो इनकी कमेटी है, इन्होंने 3 या 4 लोगों की कमेटी बनाई है, ये क्या करते हैं, उन 250 आइडियाज को ग्रिल करते हैं, देखते हैं, और उनको 10 बेसिकली आइडियाज पिक करते हैं, केवल सिंपल बेसिक फंडामेंटल के बेस पे। 1 कि वो आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए, दूसरा उससे कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, और तीसरा उससे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। वैसे एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन गोज हैंड इन हैंड, या तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो उन्होंने केवल ये 3 बेसिक पैरामीटर बना रखे, और इसी के बेस पे वो 3 लोगों की कमेटी 200 से 250 आइडियाज को पिक करती है और उनमें से टॉप 10 आइडियाज को पिक कर लेती है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, ये लोग पिछले 7-8 साल से हर साल जो उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कोक्स जिसको हम बोलते हैं, हर साल ये 3 से 4% का रिडक्शन इनकी कंपनी में आता है, जो कि करीब करीब 12 से 13 करोड़ रुपए की सेविंग करते हैं हर साल, केवल फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज के आइडियाज से, गाइस। एंड दिस इज ह्यूज फॉर इवन अ 400 करोड़ की कंपनी, राइट। और ये क्या करते हैं, इन्होंने बड़ा सिंपल मेथड बना रखा है कि जो सेविंग होती है उसका 10% एम्प्लॉय वेलफेयर में खर्च करते हैं, और उसमें उस एम्प्लॉय जिसने आइडिया दिया उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते ये लोग, ताकि उनको ये नहीं लगे कि बाकी लोगों को कि भाई हमने नहीं दिया तो हमें नहीं मिला। वो उनका एक उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, जो भी सेविंग इन आइडियाज से आती है 10% उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उसमें वो डाल देते हैं। और ये सेविंग इनकी केवल, ये ब्राजील बेस्ड कंपनी है, तो इनकी ये केवल इंडिया ऑपरेशन से सेविंग है। और उनके जो CFO से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसको, इंडिया के आइडियाज को ये लोग ग्लोबल भी शेयर करते हैं, दो दे आर नॉट अवेयर कि उससे सेविंग कितनी आती है, बट दिस इज व्हाट दे आर अचीविंग फ्रॉम लास्ट 7 और 8 ईयर्स। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो उनके CFO ने मेरे से शेयर किया कि एक एम्प्लॉय ने क्या आइडिया शेयर किया। उनके यहाँ पे एक ये, मतलब मैंने एक ये रेफरेंस इमेज ली है गूगल से, तो वहां पे ये मेटल शीट होती है उनके यहाँ पे, जब वो मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक प्रोसेस के अंदर काम आता है तो लेजर से वो शीट कट करते हैं, स्टील की शीट होती है। तो क्या हो रहा था कि 7-8 साल से एक पर्टिकुलर वेंडर से ये लोग वो शीट का फ्रेम लेते थे और उसको लेजर कट करके उसमें से फ्रेम निकाल लेते थे, उनका जो डिजायर्ड उनका जो साइज होता था, एक प्रोफाइल निकलता था बेसिकली उसमें से, और बाकी की उसमें वेस्टेज होती थी। तो एक एम्प्लॉय ने कहा कि अगर हम जो ये फ्रेम लेते हैं, जो स्टील का फ्रेम या शीट लेते हैं, अगर इसका जो डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ को हम एक लेवल पे बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा, तो हम इसमें से 2 शीट ले पाएंगे। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला तो था नहीं, और वो बंदा भी जो फ्रंट लाइन का था 20-30 हजार वाला कॉमन सेंस वाला बंदा होगा, वो आपके मेरे सबके दिमाग में आ सकता था, बट आया नहीं किसी के दिमाग में, क्योंकि चीजें ऐसे ही चल रही थी, किसी ने पूछा नहीं आज तक। 10-12 साल से ऐसा ही चलता आ रहा था, और वो सप्लाई भी वैसे ही कर रहा था वेंडर, उसने भी नहीं पूछा। हो सकता है उस समय की कुछ ऐसी लिमिटेशंस रही हो कि जरूरत पड़ा ऐसा। जब उन्होंने वेंडर से पूछा, हालांकि उसके, जब मुझे बताया CFO ने, उसके सीनियर ने, उस एम्प्लॉय ने जब ये सजेशन दिया, तो उसके सीनियर ने कहा शायद यार ये वेंडर नहीं सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि इस तरह का स्पेसिफिकेशन वो सप्लाई नहीं करते हैं। बट वही उन्होंने कहा पूछने में क्या जाता है, पूछ डाला तो लाइव झिंगा लाला। उन्होंने वेंडर से पूछा, वेंडर ने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल सप्लाई कर सकता हूँ।
गिव मी जस्ट मे बी 10 days टू डेवलप दिस डाई और मैं इसको सप्लाई कर दूंगा, बट इसमें 15% कॉस्ट आपकी एडिशनल आएगी। एंड कंपनी हैप्पीली प्लेस द ऑर्डर। 15% एडिशनल देके उन्होंने 85% बना लिया, क्योंकि उस शीट से अब एक की जगह 2 प्रोफाइल निकलने लगे। सो गाइस, आर यू फाइंडिंग इट इंस्पायरिंग और नॉट? आर यू फाइंडिंग इट इंस्पायरिंग? आर यू फाइंडिंग इट रियल थिंग कि ये चीज पॉसिबल है आपकी कंपनी में भी? चाहे मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी सर्विस हो, जॉब वर्क हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, यार हर जगह पे पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने लोगों को एम्पावर करो, केवल उनको इतना, और मैं आपको एक चीज बोलूं, इसका डबल इम्पैक्ट होता है। ये वर्चुअस साइकिल है। जब आप उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हो ना, तो उनकी आपके लिए रिस्पेक्ट 10 टाइम्स बढ़ जाती है। वो वैसे ही आपको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब आप उनको इतनी तवज्जो देते हो ना, तो उनको लगता है कि ये कंपनी रियल में हमारी है और इस कंपनी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली, और ये आपको लगता है कई बार कि ये ना बड़ी कंपनियों में होता है, नहीं, बड़ी कंपनियों में कम होता है, छोटी कंपनियों में हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। हम बस अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं। हम ट्रेनिंग कर लेंगे, कोच हायर कर लेंगे, दुनिया जहाँ की नॉलेज ले लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, 2-2 लाख के कोर्स ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन अपने लोग जिनके पास छुपी हुई नॉलेज है ना, जो गोल्ड एट द बॉटम, जो छुपा हुआ गोल्ड है, उसको नहीं देखेंगे। ये हम सबके साथ इशू है। तो मैं आपको जो कह रहा था कि लाइफ बहुत सिंपल है, बेसिक है, हमें केवल बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो मैं आपको दूसरी एक केस स्टडी शेयर करता हूं, जो कि आप सब जानते हैं उस कंपनी के बारे में, दैट इज इंडिगो एयरलाइन। तो इंडिगो एयरलाइन के बहुत सीनियर पर्सन है, मैं उनको जानता हूं, तो आई गोट some information from him also, and some of the information was in the public domain also। तो वो क्या करते हैं, वो मुझे उन्होंने बताया, प्राशर साहब है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा प्राशर साहब क्या आप कैसे करते हैं इसको, मतलब जो गोल्ड एट द बॉटम स्ट्रेटजी को कैसे आप अपनी कंपनी में हायर करते हैं? उन्होंने कहा चंदन बहुत सिंपल सी चीज है, हमने केवल 2 सवाल पूछे अपनी कंपनी में, हमने एम्प्लॉय को 2 सवाल पूछने का कहा है, हम उनके आंसर देते हैं। हम कहते हैं कि पहली चीज की इंडिगो का पर्पस क्या है बिजनेस करने का, ठीक है, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सिंपल है कि इंडिगो का बिजनेस पर्पस क्या है, और उसको सिंप्लीफाई करके वो बताते हैं कि उसका बिजनेस पर्पस ये है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। और दूसरा, वो एम्प्लॉय से पूछते हैं कि भाई आप इस बिजनेस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हो, मतलब कि क्या आइडिया दे रहे हो जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज हैं। हुआ ये, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कहते हो उसका बिजनेस का पर्पस। जैसे हम कई कंपनीज का देखते हैं, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट बड़े कॉम्प्लिकेटेड से रहते हैं, राइट, वो समझ ही नहीं आते, वो खाली बस थ्योरेटिकल से ही लगते हैं। उनकी अंग्रेजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, भारी भरकम शब्द 10-10 किलो के वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हम उनको कॉमन सेंस वाली बात बताते हैं कि भाई इंडिगो का बिजनेस पर्पस क्या है, कि हाउ टू कीप प्लेन इन स्काई रादर देन ऑन ग्राउंड। सिंपल है ये, हाउ टू कीप अ प्लेन मैक्सिमम टाइम इन द स्काई रादर देन ऑन द ग्राउंड, तभी पैसा कमाएगा प्लेन। आर यू विद मी ऑन दिस? सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो उन्होंने अपने बिजनेस पर्पस को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके फ्रंटलाइन एम्प्लॉय को बता दिया, क्योंकि उनको वो जार्गन्स तो समझ में आएंगे नहीं जो हम यूज करते हैं अपनी कंपनीज में, या जो विजन स्टेटमेंट बनाते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कहा, फ्रंट लाइन को, भाई आप हमें आइडियाज दो कि हम कैसे अपने प्लेन का जो वो है उसको हम मैक्सिमम टाइम पे फ्लाई कर सके, मैक्सिमम टाइम हमारे एयर पे रहें, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सके और हम ज्यादा रेवेन्यू कमा सकें। तो उन्होंने क्या करा, खाली यही नहीं है फ्लाई करने का, उसके जो ये प्लेन को उड़ाने का जो खर्चा है, वहां पे भी उनके बहुत सारे वो आए, मतलब सजेशंस आए, जिनको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। मैं आपसे 2 उनके एंडलेस है, मतलब इंडिगो के लिए मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं इंडिगो के, बट मैं आपसे भी केवल 2 एग्जाम्पल शेयर करूंगा, जिससे शायद आप रिलेट कर पाए, आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ हो वो चेंज, आपको इमीडिएटली वो चीज दिख जाएगी। तो पहला तो ये, आपने ये साइन देखा है बहुत सारी एयरलाइंस के अंदर, नो स्मोकिंग साइंस, ये देखा है आपने, ऊपर जहां सीट जहां बैठते हैं उसके ऊपर आपके साइन आता है, ये साइन देखा है आपने, जो ये सिगरेट के ऊपर ये कांटा बना हुआ है। गाइस कम ऑन टेल मी, आप सब लोग रिलेट करके बताइए मुझे, ये आपने जब आप फ्लाइट पे जाते हैं तो आपने देखा है ना ये, ठीक है। इंडिगो ने क्या किया, एक एम्प्लॉय ने कहा कि भाई जब एक समय के बाद जब प्लेन टेक ऑफ कर लेता है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अब आपका सीट बेल्ट बांधने का संकेत बंद कर दिया गया, आप खोल सकते हैं, लेकिन एडवाइस ये है कि आप बांध के रखें सीट बेल्ट, ठीक है। लेकिन जो ये स्मोकिंग का साइन है, इलेक्ट्रिक साइन है, ये हमेशा ऑफ ही रहता, मतलब इसके ऊपर काटा ही रहता है कि वो आप स्मोक नहीं कर सकते, राइट। और इसको दिखाना पड़ता है जब ये इसके ऊपर लाइट ऑन रहती है,
तो उसका एक इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है प्लेन में? प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? क्या कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी? प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्यूल आते हैं। और सबसे आपको पता है प्लेन उड़ाने का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे बड़ा खर्चा ही फ्यूल है। तो एक एम्प्लॉय ने ये कहा कि भाई जब 10 मिनट के बाद आप बेल्ट ऑन कर सकते हो और ये वाला जो साइन है ये हमें हमेशा ही स्क्रीन पे रहना चाहिए, कांट वी रिप्लेस इट विद अ स्टिकर? तो आपने देखा होगा कि आज की डेट में इंडिगो के सामने वाली सीट पे ये लिखा होता है नो स्मोकिंग का। देखा आपने? बहुत सारी एयरलाइंस ने यूज करना शुरू कर दिया अब आपके ऊपर नहीं आता वो, कुछ पुराने प्लेन में अभी भी है, लेकिन अब मैक्सिमम के अभी तो सामने पीछे करके देखो तो जाएगा, कहाँ है वो? आपको सामने एक स्टिकर दिखाई देगा जिसपे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। अब ये क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली। आपको पता है केवल ये छोटे से इनिशिएटिव से उन्होंने कितनी सेविंग करी है एक साल में? इंडिगो बड़ी कंपनी है बट उन्होंने 4 करोड़ रुपए की सेविंग करी। जो जो उन्होंने वो जो सेविंग करी है वो केवल इस पर छोटे से आइडिया, एक किसी इंप्लॉय ने दिया जिसकी सैलरी 20-25 हजार रुपए की सैलरी। उन्होंने कहा सर आप ऐसा करो, ये साइन रहता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, फ्यूल कंज्यूम होता है, तो हमें और उन्होंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला हाँ हमारा तो पर्पज ये है कि जो पैसेंजर है उसको ये दिखता रहे कि वो स्मोकिंग नहीं कर सकते, और ये इलेक्ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मोकिंग तो अलाउड ही नहीं है प्लेन में, डोमेस्टिक के अंदर। So this is the small change suggested by a frontline employee. दूसरा एक बड़ा अच्छा चेंज इन्होंने किया। अगर आपको याद हो आज से 8-10 साल पहले इस तरह की स्टेयर्स हुआ करती थी जब हम उतरते थे प्लेन से। कैन यू रिकॉल दैट? याद आ रहा है आपको? जब पहले आज से 8-10 साल पहले प्लेन से जब हम उतरते थे सीढ़ियां होती थी, है ना? याद आ रहा है कितना इनकन्वीनियंट होता था अगर आपके पास लगेज होता था तो? अभी बहुत कम है, अभी जो सीढ़ियां है वो बहुत कम कर दी है उन्होंने। अब उन्होंने क्या इसको रिप्लेस करा, रैंप से रिप्लेस कर दिया। और रैंप का क्या फर्क पड़ा पता है आपको? रैंप से 2 फायदे हुए। रैंप से फायदे ये हुए, एक तो कस्टमर को मजा आ गया, जो आपकी जो ट्रॉली होती है आप उसको स्ट्रोल करते हुए ला सकते हो। दूसरा ये हुआ कि उनका जो जब वो उतरते हैं तो वो जो उतरने का जो टाइम है, प्लेन को खाली करने का टाइम है, वो फास्ट हो गया। और आपको पता है वो फास्ट हुआ, कितना फर्क पड़ा उसमें? उसमें कितना फर्क पड़ा? उसमें वो मुझे बता रहे थे कि उसमें उनको इतना टाइम सेव हुआ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि हम एक फ्लाइट दिल्ली से जयपुर तक की कर लेते हैं, मतलब ओवरऑल सारी इंडिगो के अंदर। अगर मैं पूरे चेंज को समराइज करूं, केवल इस छोटे से स्टेयर्स को इन्होंने रैंप से जब रिप्लेस किया तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ी कि एक फ्लाइट और आ जा सकती है दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, मतलब करीब करीब 1 घंटे का इनको फर्क पड़ा ओवरऑल पूरे इंडिगो के अंदर। और वो भी मुझे लगता है लाखों करोड़ रुपए की, अगर आप पूरे साल में कंप्यूट करो डेली बेसिस पे, अगर आप एक फ्लाइट उड़ाओ 250 लोगों की दिल्ली से जयपुर और वापस, इट रन्स इनटू करोड्स। सो दीज वर द 2 इंस्टेंसेस व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब मुझे बताइए कि आर यू लर्निंग और डिड यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे? कुछ आपको आज वैल्यू मिली? अगर वैल्यू मिली तो लिखिए वैल्यू इन द चैट बॉक्स, कैपिटल में वैल्यू, कैपिटल में वैल्यू। आपका सबसे बड़ा, अगर मुझे पूछना हो आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आज हमने जो बात करी जितनी भी, उसमें क्या सबसे बड़ा टेक अवे है आपका? सबके लिए अलग अलग होगा। गोल्ड इज एट द बॉटम, सचिन बोल रहे हैं। ओके, आस्क जस्ट फॉर जस्ट आस्क, आस्क एन इरोस फॉर यदविंदर। एवरीवन जो भी आपको मिला हो, माइंडसेट, वेरी गुड गोकुमार। वैभव सेज आस्क, विनीत सेज 80-20, नवलीन सेज आस्क, वेरी गुड। मनोज जी सेज इरोस, वंडरफुल। लिया प्रीत सेज लिया तो झिंगा लाला। ओके, आस्क योर बॉटम लाइन एम्प्लॉय। चरणप्रीत, वेरी गुड चरणप्रीत, सॉरी। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास। एक चीज मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है जिंदगी में, जो नॉलेज है ना, विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट एन इल्यूजन। इसको अपने माइंड में इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के लगा लो जहां भी आप बैठते हो। हम बिजनेस ओनर्स के पास ना नॉलेज हम बहुत अक्वायर करते हैं, बट हम लोग एग्जीक्यूशन में बहुत पुअर होते हैं। हमें ये लगता है कि हमने नॉलेज अक्वायर कर ली, इसका मतलब हमने एग्जीक्यूट भी कर लिया। हमारा माइंड इस तरह से वायर्ड है। तो हमें ज्यादा समय एग्जीक्यूशन पे लगाना है और कम समय नॉलेज लेने में लगाना है। नॉलेज ले लिया बस, उसको अब एग्जीक्यूशन में लग जाइए। आपको रियल बेनिफिट किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन से मिलता है। Now I'm just stopping this share and switching on my video for maybe we can have Q&A.
अगर आपका कोई भी सवाल हो जो मैंने चीजें आपसे शेयर करी तो प्लीज फील फ्री. वी स्टिल हैव 16 मोर मिनट्स, तो हम बात कर सकते हैं इसमें. तो चंदन भाई पहले तो मजा आ गया, मतलब आई थिंक बिल्कुल स्टन्ड और बिल्कुल हुक टू द स्क्रीन द वे यू प्रेजेंटेड एंड सम ऑफ द केस स्टडीज यू शेयर्ड, वो एक्चुअली ब्रेन टैटू हो गया है मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का, और देखने का नजरिया भी बदल जाएगा अब जब हमने ये सीख लिया. एंड यू नो ऑल्सो आई वांटेड टू एक्नॉलेज, जैसे सबने बोला भी, सो आई बीन यूजिंग दिस एंड दिस कम्स फ्रॉम योर फर्स्ट सेशन जब हमने हाउ टू मैन्युफैक्चर टाइम सीखा था, हमने टाइम को मैन्युफैक्चर करना सीखा था. So that's when Chandan first taught us this principle of Pooch Dala to Life Jinga Lala, and I have been using that, and it has created so many wonderful opportunities for you know, me at bank, and I think for other members as well. तो वो brain tattoo का भी जो word है वो brain tattoo हुआ है मेरे, और अब तो I think बहुत सारे लोगों के हो ही गया होगा brain tattoo. तो वो बहुत powerful है, और जैसे आपने कहा लास्ट में कि आपने उसको execute करना शुरू कर दिया तो फिर उसका मजा ही कुछ और हो जाता है, और I think वो सारे का सारा सोचने का पर्सपेक्टिव भी बदल गया है और उसके रिजल्ट्स भी बदल गए हैं हमारे लिए, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू. सो नाउ विल ओपन फॉर द ऑडियंस एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, या आपका जो थॉट प्रोसेस आता है. सो यू मे यू नो लाइक टू रेज योर हैंड एंड देन वी कैन आस्क द सेम क्वेश्चन टू चंदन. हाँ जी संजीव जी, प्लीज यू गो अहेड. गौरव आप स्क्रीन पे हैंड रेज कर लो सो दैट इट्स इजियर. अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही सही. संजीव यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. Okay, got it. So first of all, Chandan, it's been really a great eye opener, to say the least. So now with respect to you know, Eros, so different companies would work it in a different fashion. So once we you know, let's say first of all, what is your suggestion? How do we initiate this exercise? Because what happens is it's going to be kind of a change management within the company. So so my question is that all this is great and all of the business owners or business leaders would want to do that. So how to induct this this in the company on the first place as an idea? About Eros you are talking about? Yeah, basically overall the complete concept, but specifically about Eros. Eros बहुत सिंपल है संजीव जी, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने अकाउंटेंट से लिस्ट लेनी है. जो मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस में सारे एक्सपेंस हेड आ जाते हैं, जितने भी आपकी कंपनी में एक्सपेंस हो रहे होते हैं वहाँ कैप्चर हो जाते हैं. ठीक है, आपको मे बी आप खुद भी कर सकते हैं फर्स्ट में एक्सरसाइज, बाकी अदरवाइज आप अपने फंक्शनल हेड को भी लेके बैठ सकते हैं, और फिर बाद में गोल्ड एट द बॉटम में भी जो हमने बात करी उन लोगों से आप बात कर सकते हैं 1-to-1 कि भाई ये खर्चे हैं, आप इसमें सजेशंस दीजिए. कि पहले तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट्स हैं कि ये जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का है, बहुत सारी कंपनी में इंटरकॉम आज भी लगे हुए हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना. तो जब आप सारे एक्सपेंसेस को देखते हो, बहुत समय जैसे हमने 10 साल पहले लीज लाइन लिया था, उसकी जरूरत थी क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था एक कस्टमर के कि लीज लाइन जरूरी है. उस समय ब्रॉडबैंड इतनी अच्छी नहीं हुआ करती 10 साल पहले. तो हमने जब उसको देखा और हमारे आईटी वाले बंदे ने बताया, बोले सर आज की डेट में तो ब्रॉडबैंड लीज लाइन से बेटर है, और हम यहाँ 15,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, वो 500 रुपये महीने का अवेलेबल है. आप समझ रहे हो. तो हमने तुरंत रिप्लेस कर दिया और फर्क भी नहीं पड़ा, एफिशिएंसी बेटर हो गई. तो जब आप हर एक्सपेंस को लाइन बाय लाइन बाय देखते हो और आप सवाल पूछते हो कि क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ, या मैं इसको आउटसोर्स कर दूं टोटली, मेरे को मैनेज करने की जरूरत नहीं. क्योंकि जब आउटसोर्स के अंदर आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, आपको एक्सपेंस टू एक्सपेंस कंपैरिजन नहीं करना है. हो सकता है कि आप जो 10,000 रुपए एक्सपेंस कर रहे हो और आउटसोर्स में भी 10 हो, लेकिन आपकी सुपरविजन जो कॉस्ट है, हमारा जो टाइम की जो वैल्यू, हम कभी भी उसको अकाउंट फॉर नहीं करते. किसी इंप्लॉय को या किसी प्रोसेस को आपको सुपरवाइज करने में तो टाइम जाता है, राइट. तो जब आप ये, और एक जो सिंप्लीफिकेशन है जिसको हम यूज नहीं करते, हमारी लाइफ ऑल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी से लाइफ कॉम्प्लिकेट भी होती है. तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और हम अननेसेसरी टेक्नोलॉजी के लेयर लगा रहे हैं, कहाँ पे एक ह्यूमन साइड की जरूरत है, कहाँ पे आपको अननेसेसरी IVR चाहिए ही नहीं. अपनी कंपनी में आप 12 लोगों की कंपनी हो, आपके पास कॉल ही 10 आती है और आप कस्टमर को IVR पे रख रहे हो अननेसेसरी.
सीधा है ना, उठाते ही कस्टमर को अगर आपकी आवाज मिलेगी तो बढ़िया है ना, वेट नहीं करना पड़े, तो सिंप्लीफाई कर दो आप उसको। तो वो सारे आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, वो एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड ऑलरेडी ओपन अप हो जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई केवल आपका माइंड ओपन अप करने के लिए और प्रोएक्टिव वे पे ओपन अप करने के लिए है कि आपकी कंपनी के कल्चर में आ जाए ये चीज। All right. So first it has, if I understand correctly, first we have to do kind of an internal audit and do that exercise from our end, and then go for the next steps. एब्सोल्युटली। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में एक उसने सजेस्ट किया कि सर ये जो आप हमारे कंपनी में 4 या 5 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी, वो किसी का पीरियड था अक्टूबर से नवंबर, किसी का था दिसंबर से जनवरी, सबके यहाँ होता है राइट। उसने कहा सर हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि सबका पीरियड हम 1 अप्रैल से 31 मार्च करा लें, और उससे हमें ये फायदा होगा, एक तो अकाउंटिंग सिंप्लीफाई हो जाएगी, दूसरा हम नेगोशिएट बेटर कर पाएंगे, क्योंकि 31 मार्च को सारे इंश्योरेंस कंपनी के टारगेट होते हैं, और वही हुआ, हमारा प्रीमियम कम से कम 40% कम हो गया। और ये मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ शेयर किया था जब ये आइडिया, तो उनका करीब करीब 46 करोड़ का प्रीमियम जाता था, वो करीब करीब 11-12 करोड़ से कम हो गया केवल नेगोशिएट करने से, ये मार्च में ले जाने से, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, उनका टर्नओवर ही 5,000 करोड़ का है। Thank you so much. मोस्ट वेलकम सर। हाँ जी, एनीबडी Yes, Gaurav ji, yes, you can ask. Sir, good morning and very nice session, honestly. And the thought, you have really changed the thought process, which I was already on a track, but the same has been done into very better manner. Thanks a lot for the same. We already has a process of discussing on a monthly basis with our core team member as well as our field team, who are into the various streams like audits and other related activities. My thing which I need to ask is, we are struggling in order to reduce the cost of travel, which is almost 60 to 70% of my entire cost. अच्छा, So we have already collaborated with OYO and discussed with many things. We already have a second competitor lineup with Globetrot, and we are doing it with them, with the hotel management and other related things. But our basic thing in order to reduce the overall travel cost is still into the pain area. I'm struggling because I have discussed with my core team, honestly, and they are very much reluctant to get a budge on that, because that's the thing, they are not going to have any sort of discussion on that manner. They want to increase it rather than to have an optimized value on sale. But I still feel that there is a gray area of almost 15 to 20% which can be optimized at any level of time. What we have done in that manner, ki say a person going to Chennai, rather than taking a cab on auto, we have convinced them to take a bike on ride, on a daily rides. So it has already saved around 12 to 15% of our local conveyance. But still, I feel there is still an area which can reduce my 15 to 20% cost. So do you have any set examples in the past which can help me to take an clue from that in order to get the same thing done? Honestly, that's my basic thing which I need to understand. Thanks for that. गौरव जी, मेरे पास अभी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं है, एंड आई गेट योर पॉइंट। दिल मांगे मोर, मतलब जितना रिड्यूस हो जाए उससे नहीं होता, और चाहिए हमें रिडक्शन, तो है ना, तो 15-20% तो हो गया रिडक्शन, लेकिन और चाहिए, विच इज फाइन। आई थिंक वी शुड कीप लुकिंग फॉर दैट, बट आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक राइट नाउ एनी एग्जांपल व्हिच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट। बट अगर आप ये जो तीनों प्रिंसिपल मैंने बताए कॉस्ट रिडक्शन फाउंडेशन के, इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे, 80-20 है, आस्क है, उससे आपको रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, makes sense. Be able to get the ideas. ठीक है सर, thank you. Great, thank you, Gaurav. And I think Vineet ji, Dimple, so Chandan, Gaurav is also chartered accountant. Vineet ji is also chartered accountant. Dimple is in Australia. She is a CPA. And we all run. Dimple से मैं मिला हूँ। Hi Dimple. अच्छा, वाह, ऑस्ट्रेलिया में मिले थे? मैं सिडनी गया था तो। हाँ जी, हेलो चंदन जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। So good to see you. Sorry, I was a bit busy today, but जब पता चला कि चंदन आ रहे हैं, तो I just said, okay, जितनी भी मर्जी busy हूँ, I have to see him. Absolutely loves your presentation today, and
I want to tell everyone in bank, like, he's absolutely amazing person. I just loved meeting him. We had dinner at our place actually with him. Right. चलो even better, देखो क्या बात है. तो मैं ये कह रहा था कि I think these are some of the areas wherein being chartered accountants, you can also help your clients to implement some of these structures. It becomes much easier. और जितने सिंपल तरीके से चंदन ने बताया, क्योंकि क्लाइंट का सारा डेटा आपके पास होता है, एंड दिस इज द वैल्यू एड व्हिच यू कैन ब्रिंग टू द टेबल अपार्ट फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग. तो उनका देखने का नजरिया आप बदल सकते हो. जब वैल्यू क्रिएट होगी तो आप अपने लिए भी वैल्यू क्रिएट कर ही लोगे. सो दैट वाज दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हाईलाइट दिस. So, I think we can wrap up now, although wish we can continue it for longer. But thank you guys, and thank you so much, Chandan, for sharing your insights, inputs, spending a lot of your time. मैं एक चीज और जानना चाह रहा था चंदन, एंड जैसे आपने बताया कि आस्क, तो आप ये सेशन रेगुलरली सीएफओस के लिए करते हैं, और आज आपने बैंक के लिए सेशन किया, और ये सारे के सारे सीईओज हैं, ऑनर्स हैं अपनी अपनी कंपनीज के. नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं आप इस सेशन के लिए? ये मत पूछिए आप. मैं इसलिए मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि कई बार होता क्या है कि जब आपको वैल्यू मिल रही होती है ना, और उसका कोई प्राइस टैग नहीं होता, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो एक सेशन है. मतलब बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ दोस सेशंस, आई हैव लर्नड अ लॉट. सो आई जस्ट इन केस यू फील ओके, मतलब टिपिकली बिकॉज आपने उस सारी की सारी लर्निंग को 1.5 घंटे में आपने क्रिएट कर दिया और आपने शेयर कर दिया सबके साथ. बट एनीवेज आई विल टेल यू गाइस कि दिस हैज अ ह्यूज कॉस्ट अटैच टू इट, जो कि चंदन चार्ज करते हैं, बिकॉज वो इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं इसके लिए. एंड बीइंग पार्ट ऑफ द बैंक, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, एंड ही हैज बीन वेरी वेरी ग्रेशियस टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शेयर ऑल हिज विजडम and knowledge, which is actually hard earned money which we can save, and as I said earlier, penny saved is penny earned. तो वो बहुत वैल्यूएबल है. अब लेकिन अल्टीमेटली आइडिया ये है कि हमने सीख लिया, उसको एक्ट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो देन nobody can do anything. So, but anyways, Chandan, thank you so much for joining today's Bankable Talk session, and that's why we call it Bankable, क्योंकि बहुत ही bankable सा topic था, और I think we can implement that. We can save a lot of money for ourselves, and we can make it part of our business. This thing. So, guys, thank you. Big thank you to Chandan, and maybe round of applause. Maybe you can type in the chat box. Thank you, Chandan. Thank you so much. I also, loved interacting with each one of you, though it was in the chat box. I would have loved had we been in the physical format. तो बड़ा अच्छा लगता, but अच्छा बहुत मजा आया. Thank you so much, and wish you all the best in your business. Right. Thank you.